after my graduation, job कैसे लगेगी was the main concern. So I हाँ. didn't want to jump directly onto MBA. I wanted to get the practical knowledge. मैंने अपने seniors वगैरह से पूछा, then they suggested me that you can search on Internshala. Then I saw placement guarantee course. That is what attracted me. So I applied supply chain logistics and management, and now I am working at Flipkart Minutes. हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं देव. Dev is our supply chain logistics placement guarantee course student, and he has recently secured a full-time job with Flipkart Minutes in Bangalore. So welcome Dev and a huge round of applause for your career की शुरुआत in supply chain logistics field. आज के इस इंटरव्यू से हम आपसे आपके पूरे प्लेसमेंट जर्नी के बारे में जानेंगे. What is your entire process of getting placed in Flipkart Minutes? किन रिसोर्सेज से पढ़ाई की, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए और इंटरव्यू प्रोसेस को भी डिटेल में जानेंगे. सो देव, फॉर आवर व्यूअर्स, प्लीज टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड वेयर आर यू वर्किंग करंटली. So I have completed my graduation from Bachelor of Arts. My majors were political science and English. I have completed from Cristo Jayanti College, Bangalore, and now I am working at Flipkart Minutes. That is also situated in Bangalore itself. And I am working in Flipkart Minutes since 2 weeks. It's been 2 weeks I am working here. It is a great experience as of now. Yeah. तो आपने ग्रेजुएशन किस साल पे पूरी की अपनी? मैंने 2024 में अपनी 2024 जुलाई आई कंप्लीटेड मैं ग्रेजुएशन कर दी थी मैंने कंप्लीट. Okay. And after graduation, what did you do to get into supply chain logistics field? Okay, so after my graduation, I was just scrolling on Internshala where I saw the course, PGC course on supply chain logistics and management. So wherein I have applied, and then I got a call from the team, and then I applied for the course, which was a 2-month course, all total, wherein we have also got some industrial level projects that we had to do on both e-commerce as well as quick commerce, and also on Excel we now have a good grip over it after our course. Great. Which is ultimately helping me. तो आपने जैसे कहा कि आपने BA किया कंप्लीट, तो उसके बाद आपने सप्लाई चेन लॉजिस्टिक में कैसे एंटर होने की सोची? हाँ, तो हुआ ऐसा था कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन मेरे जो भी एल्डर दोस्त वगैरह हैं उन लोगों ने लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स में MBA वगैरह दे वर डूइंग. सो दे आल्सो सजेस्टेड मी टू go in this field and experience how the quick commerce and e-commerce works, because they also feel that the future is all online. Yes. आजकल ऑनलाइन डिलीवरीज ही इतनी है, इतना ऑनलाइन ऑर्डर है, तो यू नीड जो लोग जो सप्लाई चेन मैनेज कर पाए. पर जैसे आपने कहा कि आपके जो सीनियर्स थे कॉलेज में वो MBA कर रहे थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया, तो आपने MBA करने की नहीं सोच के ये इंटर्नशाला का कोर्स क्यों ऑप्ट किया? तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन in which I have completed is Bachelor of Arts, wherein I have not learned anything about supply chain or e-commerce or quick commerce. So I didn't want to jump directly onto MBA, wherein I don't have any idea what is like they are teaching or something. So beforehand, I wanted to get some idea like what I'll be doing or get the practical knowledge also. So okay. तो that's why आपने सोचा कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम कोर्स करते हैं. पर अब कोर्स करने के लिए आपने इंटर्नशाला ही क्यों चूज किया? मतलब आप इंटर्नशाला पे कैसे लैंड हुए और फिर आपने कोर्स इंटर्नशाला ही क्यों चूज किया सप्लाई चेन लॉजिस्टिक प्लेसमेंट गारंटी कोर्स लेने के लिए? हाँ, तो अगेन वही था कि मैंने अपने सीनियर्स वगैरह से पूछा, then they suggested me that you can search on Internshala. Okay. Then I was searching, then I got this course there when is applied. Also certificate मिलता है. That is also coming from NSDC. That is a very big government youth, like it gives the youth a certificate of their skills and everything, which also holds a very big weightage in your resume itself. So अगर आप उस resume में अपना ये certification डालते हो तो it will help you a lot in getting placed and if you are looking for the jobs. Okay. तो आप BA से आए जो बिल्कुल भी आई डोंट नो कनेक्टेड है या नहीं है सप्लाई चेन लॉजिस्टिक से, तो आप बताइए कि लॉजिस्टिक की फील्ड में करियर बनाना है तो क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी? ओके, सो आपने पूछा कि BA में कुछ ऐसा बैकग्राउंड है या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है. तो फिर अगर किसी को भी ऐसे लगे कि हाँ स्किल्स की जरूरत है या फिर कुछ भी, तो उसके लिए आपको यू हैव टू गेट इनटू इट. इधर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी जरूरी है अगर आप कुछ भी एक्सपीरियंस. आप जैसे आपने कोर्स किया तो कोर्स में क्या बताते हैं, लाइक किस चीज के बारे में बताया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं? ओके, सो स्टार्टिंग में तो वी वर डूइंग जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द ई-कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स पे हमारे इंट्रोडक्शन वगैरह दिया था.
और देन हम लोगों को उसी चीज़ों पे लाइक बेसिक लेवल पे प्रोजेक्ट्स वगैरह दे वर प्रोजेक्ट्स दैट वी हैड टू डू एंड सबमिट. After which we also had MS Excel this thing course that went for almost 15 days. उसके बाद काफ़ी अच्छा grip हो गया था MS Excel पे, like I can do anything on MS Excel using formulas or using pivot tables. Like I was confident in it. ओके, तो जितना मुझे और भी समझ में चीज़ें आया हमको, कि एक स्किल एक रिक्वायर्ड होती है एमएस एक्सेल. करेक्ट, हाँ बिल्कुल. और जैसे आपने कहा आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, तो अगर एक या दो प्रोजेक्ट्स बता सकें कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स थे वो? वी हैड अ प्रोजेक्ट ऑन Zepto. लाइक Zepto नाम पे हमको एक प्रोजेक्ट मिला था. लाइक उसमें हमको ये करना था कि लाइक व्हीकल अनलोड होंगी, लाइक हाउ मेनी मैन पावर्स वी नीडेड टू अनलोड दी व्हीकल, एंड वी हैड द क्वांटिटी. लाइक इतनी अगर क्वांटिटी है हमारे पास और इतनी व्हीकल में है, तो लाइक हाउ मच मैन पावर डू वी नीड टू अनलोड द व्हीकल इन द गिवन टाइम. सो दैट वाज द प्रोजेक्ट. दे वर तो मैथ्स फॉर्मूलाज की टू यूज. रिक्वायरमेंट. करेक्ट है, मैथ्स की रिक्वायरमेंट है. पर तो आपके हिसाब से किस फील्ड के बच्चों को इस फील्ड में आना चाहिए, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के, या कोई भी फील्ड के बच्चे आ सकते हैं? कोई भी फील्ड के बच्चे आ सकते हैं. व्हाट आई थिंक कि कोई भी फील्ड के बच्चे आ सकते हैं. एक्सपीरियंस लेने में कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी भी फील्ड का अगर आपको इंटरेस्ट है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट एंड गो फॉर इट. यू विल बी अचीविंग समथिंग एट लीस्ट. हाँ, ग्रेट. तो आपने बीए की, तो बीए जब फिनिश हो रही थी आपकी, तो क्या फीलिंग थी? आपको ये डाउट था, मतलब आपको ये कंसर्न होगा कि व्हाट नेक्स्ट, जॉब लगेगी नहीं लगेगी? Yes, correct. अब आपकी जॉब लग गई है, एंड दैट टू इन Yes. फ्लिपकार्ट मिनट्स. तो Yes, हाउ आर यू yes. फीलिंग नाउ? So after graduation, again, what you are thinking was the same thinking that I had that time. That job कैसे लगेगी was the main concern. So again, इसमें जब मैंने कोर्स में ऑप्ट किया, then I saw placement guarantee course. That is what attracted me. So I applied, and again, you'll have to do the course very well to get into the placement. Then आपको काफ़ी चीज़ें कोर्स में भी पता चलेंगी, जैसे कि आप इसी जो कि आप अगेन आपने जॉब में यूज़ कर पाओगे. लाइक अभी मेरा जो जॉब है, coming to Flipkart Minutes as a first job is like very good for me. As gaining experience as a first job is really as good a fresher, yeah. Yes, correct. So starting your career with Flipkart Minutes is Yes. a great career Yes. start. Correct. राइट. सो अगर हम थोड़ा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जाने कि पूरा प्रोसेस क्या रहता है, जैसे कि पहले आप कोर्स में एनरोल करते हैं, फिर प्लेसमेंट जर्नी कब से स्टार्ट होती है, उसमें प्लेसमेंट असिस्टेंस कैसे मिलती है, और फिर फ्लिपकार्ट मिनट्स में जॉब ओपनिंग थी, उसके बारे में आपको कैसे पता लगा, कैसे अप्लाई किया? सो होगा कि आप स्टार्टिंग मतलब जैसे कि आपका कोर्स स्टार्ट होगा, आप अपनी क्लासेस के लाइक क्लासेस करते रहेंगे ऑन डेली बेसिस और वट एवर यू आर गेटिंग द शेड्यूल. देन आपको आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, लाइक दैट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट समथिंग, क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, देन योर MS Excel. तो होता कि आफ्टर योर कोर्स और इन बिटवीन कोर्स ऑल्सो इफ देर इज एनी अपॉर्चुनिटी, वो लोग आपको ऑन मेल सेंड करेंगे, लाइक यू विल हैव टू अप्लाई ऑन इट. वो सब आपको ऑन क्लासेस वो लोग समझा देंगे कि कैसे आपको अपना रिज्यूमे बनाना है और कैसे आपको ऑल्टर करना है, और जैसे भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा उसके हिसाब से. तो आफ्टर विच आप अप्लाई करेंगे उस कंपनी में, देन they'll only the Internship team itself will shortlist your resume and proceed with the placement this thing. So आपको वो after which हाँ, फिर आपको अगर कंपनी shortlist करती है, then you'll get the call for interview, then you'll sit for the interview. If you are prepared and confident enough to speak what they are asking, you'll get hired. That's not something which is very difficult. Okay. तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि कितने राउंड्स थे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे? So in Flipkart Minutes, my job role is operations executive. Like मेरा operations का काम है. So अभी जैसे कि हमको पता है Flipkart Minutes is not like Blinkit, Zepto, which is working from a long time. It is started as a new this thing. So backend में बहुत काम रहता है. So operations executive में क्या काम रहेगा, like आपको all the vendors or the brands जो भी open purchase orders हैं, you'll have to get it scheduled, and then you'll have to get it delivered to the Flipkart warehouse. Okay. That's your job. Yeah. There are daily target, but you'll have to complete it on a weekly basis. That is the thing. Okay. पर इस जॉब रोल के लिए इंटरव्यू कैसा रहा आपका, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए और कितने राउंड्स थे? ओके, करेक्ट. तो इंटरव्यू में क्या था, मेरा फर्स्ट राउंड वाज इटसेल्फ मेरा मैनेजर ने लिया था, असिस्टेंट मैनेजर. सो उन्होंने मेरे से ऑल बेसिक क्वेश्चंस लाइक क्या क्या, लाइक मेरा बैकग्राउंड, व्हाट स्किल्स यू हैव व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन दैट वी आर ऑफरिंग. So all the skills I have told, like
और अगर किसी को वेंडर वगैरह से बात करनी आती है, लाइक यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि फ्लिपकार्ट मिनट्स और कोई भी वेयर हाउस अगर आप लोगे तो अगर वो इंडिया में काम कर रहा है दे शुड नो हिंदी। हिंदी आपको आनी चाहिए अगर आपको किसी भी वेंडर या फिर ब्रांड से कनेक्ट करना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर दे टोल्ड मी लाइक यू नो हिंदी और कैन यू स्पीक हिंदी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम। और स्किल क्वेश्चन जो भी पूछे थे उनने, आई कुड आंसर इट। दैट्स नॉट वेरी। ग्रेट। अब आपका पहला प्लेसमेंट हुआ, लाइक फर्स्ट जॉब लगी, वो भी फ्लिपकार्ट मिनट्स में, तो whom did you call first to tell कि मेरा प्लेसमेंट हो गया है, I got hired? I didn't have to call anyone as I live with my family in Bangalore itself. मैं वैसे यूपी का हूँ लेकिन आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर फॉर पास्ट 12 और 13 years. सो जिनको बताना था मम्मी पापा को, उनको तो मैंने ऑलरेडी बता चुका था। ऐसे किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं। और मेरे जो सर थे जो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, आई आल्सो टेक्स्टेड हिम, ही आल्सो कांग्रेचुलेटेड मी। या तो आप क्या ये इंटर्नशाला का सप्लाई चेन लॉजिस्टिक प्लेसमेंट गारंटी कोर्स रिकमेंड करेंगे? क्योंकि जैसे आपने बताया आपको भी रिकमेंड ही किया गया था, आपके सीनियर्स ने रिकमेंड किया था, तो क्या आप भी रिकमेंड करेंगे और क्यों? बिल्कुल 100%। आई विल रिकमेंड इट टू द कमिंग ग्रेजुएट पीपल और इवन आफ्टर मास्टर्स आल्सो यू कैन डू द कोर्स, बिकॉज मेरे बैच में जो मेरा सप्लाई चेन बैच था उसमें मास्टर्स करे हुए लोग भी इसमें कोर्स में एनरोल किए हुए थे। Okay, so yeah, this is a good opportunity and the future will be, I feel, is going to be very bright in this field. So आपको of course इसमें enroll करना चाहिए if you can do it and you have skills to capture these things. आपने अपना जॉब टाइटल, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे पता ही दी हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगी कि अगर आप अपना करियर सो फार अपनी करियर जर्नी देखें, उसमें से एक या दो एडवाइस आप किसी भी रिसेंट ग्रेजुएट या फ्रेशर को देना चाहें जो किसी भी फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो वो क्या होगी? So the one advice I would give to the people like coming graduates will be कि अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि आप इस चीज में लाइक सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में, सो आपको जरूर एनरोल करना चाहिए। आप चाहे किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द इंटरव्यू इटसेल्फ विल नॉट बॉदर लाइक फ्रॉम वेयर यू हैव ग्रेजुएटेड, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास स्किल्स हैं उस काम के लिए, यू आर गुड टू गो। Yes, yeah, great advice. Yeah, so thank you so much, Dev, for your time, and I hope कि जो भी viewers ये आपका वीडियो देखेंगे, they will get required career tips, and this video will help them. And viewers, thank you for watching the video. I will see you in the next video with next inspiring story. Until then, all the best.